क्या देश के प्रधानमंत्री आज पार्लियामेंट से ऊपर हो गए हैं कि वो यहाँ पे आकर चर्चा नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री को सदन में आना होगा। Not coming to the parliament does not signify the good gesture of a democratic country. As head of the government, honorable prime minister भी पार्लियामेंट में आए। दोनों में से जो सदन उन्हें पसंद है, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी सरकार मणिपुर से प्रतिशोध ले रही है, बदला ले रही है। मोदी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर संसद की मर्यादाओं को बुलडोजर के नीचे कुचल रही है। मोदी सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि उन्हें मणिपुर के लोगों के साथ साथ मणिपुर शब्द से नफरत है। इसीलिए अब पिछले 8 से 9 दिन से संसद में मणिपुर शब्द पर चर्चा होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। इंडिया के 68 सदस्यों ने लिखकर रूल 267 के अंदर एक नोटिस दिया कि सब कार्य सस्पेंड कर मणिपुर में जो कत्लो गैरत हो रही है, भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, संविधान का शासन कुचल दिया गया है। खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है और बहुत पहले वहां की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में ये सारा माहौल फैल रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, लोगों को बीच चौराहे पर पुलिस से छुड़ाकर बिहेड किया जा रहा है, सर काटे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ना कानून है, ना संविधान है, ना कोई और व्यवस्था वहां बची है। उस पर चर्चा के लिए 68 साथियों ने बाकायदा नोटिस दिया। इसके बावजूद सरकार बेईमानी की आखिरी हद तक पहुंचकर और गिरकर अब चर्चा से भाग खड़ी हुई है और वो चाहते हैं कि शोरगुल में आधा घंटा से कम चर्चा हो और उसमें भी विपक्ष के लोग ना बोलें, इंडिया के लोग मणिपुर के दर्द को ना बयां कर सकें, केवल और केवल सत्ता पक्ष के कुछ पिछलग्गू लोग बोलें और बात वहीं समाप्त हो जाए। हमने ये निर्णय किया है कि प्रधानमंत्री को सदन में आना होगा। प्रधानमंत्री को मणिपुर के लोगों से क्षमा मांगकर मणिपुर को किस प्रकार से राहत देंगे, मरहम किस प्रकार से लगेगी, भारत मां का सीना जो छलनी हुआ है उस पर किस प्रकार से आप मरहम लगाएंगे, इसकी चर्चा करनी होगी। तब तक इंडिया के सारे मित्र दल मिलकर इस देश की आवाज उठाते रहेंगे। The logjam that is prevailing in the parliament for the past 8 days is not because of the opposition parties as is being focused outside. The issue is Manipur incident. For the past 3 months, Manipur is under unrest. 150 people have been killed, thousands have been injured and nearly 75,000 are displaced. A team of 21 members of parliament from the opposition went there in person and studied the situation and have come back. We want to have an extensive debate in the parliament. So it cannot be under a rule which gives allots with 2.5 hours and just is another discussion. We have had too many short duration discussions in the past. After our deliberations, the ministers do reply or do not reply. It is up to their convenience. So we don't want to belittle this serious issue into a very minor debate. So what the opposition parties are doing is, we seek under Rule 267, which solicits that all the business listed on that day should be suspended and a full-fledged discussion should happen. Along with that, we expect the Prime Minister of the nation, who is the leader of the government and who is responsible and answerable to each and every life of the Indian nation, should come to the parliament when it is in sessions, should make a statement of what is going on in Manipur, what actions have been taken and what they intend to do. Whereas when he is refusing to come or the government is not prepared to bring the Prime Minister there, we insist on our demand. Considering the seriousness of the issue, the Prime Minister not coming to the Parliament
does not signify the good gesture of a democratic country. So we stick on to that. Again, we want to make clear that it is not the opposition, only the ruling party. They are not prepared for an extensive debate on this serious issue. So we stand on our same stance that Prime Minister should come and it should be debated under Rule 267, that is suspending of all the business and taking up Manipur issue. लगभग 65 राज्यसभा के सांसदों ने मणिपुर पे चर्चा का नोटिस दिया और ये कहा एक लंबी और एक विस्तार से मणिपुर पे चर्चा सदन के भीतर हो। अगर सत्ता पक्ष ये चाहता है कि मणिपुर पे चर्चा हो और अगर सत्ता पक्ष चर्चा कराने के लिए प्रतिबद्ध है तो उन 65 नोटिसेस में से कोई एक भी नोटिस पे अपनी स्वीकृति दे दीजिए और चर्चा शुरू हो जाएगी। केवल सदन में आकर ये चिल्लाने से कि हम चर्चा चाहते हैं, चर्चा नहीं होगी। हम चेयरमैन साहब से, सभापति जी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहेंगे कि मणिपुर के विषय पे चर्चा हो और जब जब एक विस्तार से लंबी चर्चा होती है, संसदीय कन्वेंशन ये कहता है कि देश के प्रधानमंत्री जी आकर उस बहस में हिस्सा लेते हैं। जैसा कि अभी बताया गया, देश के कई प्रधानमंत्री सदन के भीतर आकर इस विषय पे जब भी रूल 267 के हिसाब से बहस हुई है, सदन के भीतर आकर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक तमाम प्रधानमंत्री सदन के भीतर आए और अपना वक्तव्य दिया। इसीलिए हम चाहेंगे कि एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट में आए। दोनों में से जो सदन उन्हें पसंद है, लोकसभा पसंद है तो लोकसभा, राज्यसभा पसंद है तो राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में आकर मणिपुर पे अपनी बात रखें और सरकार क्या कदम उठाने जा रही है इस विषय से पूरे देश को अवगत कराएं। क्या देश के प्रधानमंत्री आज पार्लियामेंट से ऊपर हो गए हैं कि वो यहाँ पे आकर चर्चा नहीं करेंगे? ये कुछ नहीं है, बस सरकार को बचाने की कोशिश है, प्रधानमंत्री को जवाबदेही से बचाने की कोशिश है। इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। व्यापक चर्चा हो, पूरी चर्चा हो, विस्तार से चर्चा हो, सारे राजनीतिक पक्ष इसमें भागीदारी लें और जो सांसद मणिपुर होकर आए हैं उनकी व्यथा सुना पाए मणिपुर के लोगों की कि किस तरीके से उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और मुख्यमंत्री अपनी मनमानी कर रहे हैं। धृतराष्ट्र की तरह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने अपने आंखों में पट्टी बांधी हुई है। यही हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट है।